Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are continuing with our PT questions on the topic environment. So continuing in part 2 from the previous section where we left from. So joint forest management in India consider the following statements. It helps to meet the needs of subsistence and livelihood as well as generates local environmental services for locals, and it has legal sanction under the Indian Forest Act 1927. Joint forest management. So needs for subsistence, I think both are true. जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये पहला वाला नहीं, सेकंड वाला नहीं होगा क्योंकि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर में आता है 1980 में। ओनली वन होना चाहिए। नहीं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में आता है 1988। देयर इज अच्छा, नो लीगल पॉलिसी है सैंक्शन तो फॉर वो एक्ट। एनएफसी। हम्म। दो, एक फॉरेस्ट पॉलिसी है, एक और एक एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो ये पॉलिसी में और आता है फॉरेस्ट पॉलिसी कौन से ईयर की है? 1988। 1988। ओके। ये ऊपर ने रिसेंटली वाला नहीं सेवरल। किए थे, हाँ। 50 और 49 वाला नहीं किए थे, छूट गया था पिछले बार। ब्लेसले डिक्लेरेशन टाटा वो तो सेंट्रल। एक ही। हम्म। Consider the following approaches for the conservation of biodiversity. तो इसे how many of the above techniques are in vitro techniques for the conservation of biodiversity? In vitro मतलब in situ, मतलब नहीं, थोड़ा अलग ही है। टिश्यू कल्चर है, क्रायो प्रिजर्वेशन, इन विट्रो मतलब वहीं पे डीएनए क्लोन्स, जर्म प्लाज्म इन बैंक्स। विट्रो मतलब होता है कि तो लैब के अंदर बना रहे हो, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वैसे लैब के अंदर बन के हो रहा है। तो चारों टिश्यू लैब, कल्चर होगा। टिश्यू होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन तो वहीं हुआ ना जहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन है, वो तो वहीं पे आप उसको प्रिजर्व कर रहे हो, तो इन विट्रो। जर जर्म प्लाज्मा प्लाज्म बैंक, बैंक, ये तो हो गए डीएनए क्लोन्स, ये सारे ही होंगे। 1 2 4 सारे, हो गए ए है। फोर, ऑल फोर। ठीक है। डी इसका आंसर। इसमें डेफिनेशन दे रखी है प्रॉपरली इन विट्रो टेक्निक के बारे में कुछ? इन विट्रो मतलब होता है कि लैब लैबोरेटरी प्रैक्टिस आर यूज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल and microbial diversity through its storage in germoplasm bank, propagation via tissue culture, तो cryopreservation, conservation into artificial seed, maintenance, long-term perpetuation as DNA clones. ठीक है। Then 52, recently several state governments approached the Supreme Court over the government's delay in approving the bills passed by the state legislative assemblies. In this context, consider the following statements. So, Constitution does not prescribe a specific time frame for the governor to make a Hmm. decision with respect to the bill. Hmm. True. When a bill passed by the state legislature endangers the position of the state high court, it is obligatory for the governor to receive the bill Hmm. for the consideration of the president. True. If a Hmm. bill is returned by the governor and it is passed again by the with amendments by state legislature, the governor can withhold his assent to the bill. ये गलत है। Hmm. अगर फिर से बिल वापस चेंज करके मतलब करना विदाउट एनी साइन, चेंजेस। लेकिन वो रिजर्व कर सकता है हाँ। प्रेसिडेंट के लिए, तब भी कर सकता है हम्म। रिजर्व के खुद तो एक्शन। असेंट को विदहोल्ड हाँ नहीं कर सकता, तो ओनली टू होना चाहिए थर्ड इज इसमें। इनकरेक्ट, ओनली टू। हम्म। ठीक है। Consider the following statements with respect to the sacred groves in India. So they are the patches of natural vegetation preserved by indigenous societies on religious and cultural grounds. True. They have been legally protected as community reserves under the Wildlife Protection Act 1972. Wildlife Protection Act नहीं होगा, I think, या ये गलत है second. And they are maintained by rural communities. I think 1 and 3 होना चाहिए। मेंटेन्ड बाय रूरल कम्युनिटीज ओनली, रूरल अर्बन नहीं हो सकता है क्या इसमें? अर्बन भी मतलब साथ में सेक्रेड ग्रोव्स इन इंडिया। आई विल गो विद ओनली 2। ऑल थ्री होना चाहिए क्योंकि लोकल कम्युनिटी, रूरल कम्युनिटीज, पैचेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन प्रिजर्व्ड बाय इंडिजिनियस सोसाइटी, लीगली प्रोटेक्टेड, ये तो है ही। एक्ट गलत तो नहीं है यहाँ पे? वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए। नहीं, वो नहीं है। सेक्रेट ग्रुप जो भी होगा, ग्रुप से वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होगा। फॉरेस्ट हो गया, जैसे फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, फिर नेशनल पार्क, सब डब्ल्यूपीए के अंदर, ये भी डब्ल्यूपीए के अंदर आने वाला है। आंसर क्या ऑल 3 है? आंसर सी, ऑल थ्री। ठीक है।
Which of the following regions have been classified as biodiversity hotspots in India? Western Ghats है, लक्षद्वीप नहीं है, हिमालयज है, इंडो बर्मन है, लक्षद्वीप आइलैंड्स I don't think so. Lakshadweep Islands biodiversity hotspot. Only three. मतलब 1, 2, 4. 1, 3, 4 एक है Sorry, हाँ ऑप्शन में, 1, 3, 4 1, 3, 4 होना चाहिए। होगा। 1, 3, 4 होगा। वो वेस्ट इंडो बर्मा हो जाएगा, सुंडा होता है, लक्षद्वीप नहीं, अंडमान निकोबार आइलैंड। सुंदरलान। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें इंडो बर्मा में अंडमान एंड निकोबार भी इंक्लूडेड है। इंडो बर्मा हो जाएगा, फिर एक सुंडा लैंड हो गया, एक हम्म। हिमालयन हो गया, एक वेस्टर्न घाट हो गया। अच्छा, ठीक है। These are 106 coastal and marine sites that have been identified and prioritized as important coastal and marine areas by the Wildlife Institute of India. So, Koteshwar, Gujarat, Angria Bank, Goa, Kali Estuary, Karnataka, Junput, Odisha. Junput. Correctly matched. ये क्या हो प्रवेश? श्योर, मेरे हिसाब से पहला तो ठीक होना चाहिए, कुतेश्वर गुजरात, काली एस्चुरी कर्नाटका। मेरे हिसाब से इसमें 1, 2, 4 लगाऊंगा मैं। 1, 2, 4 पता है कौन सा है काली? काली मुझे पता है कि उत्तराखंड में है, तो इसलिए कर्नाटका नहीं हो सकता। और बाकी कोटेश्वर पता है, जुनपुट पता है, अंगरिया नहीं पता था, लेकिन हो सकता है जब स्पेसिफिक दिया है तो गोवा में। आंगड़िया बैंक। कोटेश्वर है गुजरात, मैं तो फिर अंगरिया है मैं तो महाराष्ट्र, गलत करूंगी। हाँ। काली है कर्नाटका, और जनपुत हो गया वेस्ट बंगाल। जुनपुत वेस्ट बंगाल है, ठीक है, काली कर्नाटका ही है। हम्म। जुनपुत वेस्ट बंगाल, आंगड़े is महाराष्ट्र। Which of the following best describes homeostasis in ecology? Unlimited capacity of ecosystems to regulate every aspect of their environment, constant state of change and adaptation, the capacity of ecosystems to self-regulate and maintain stability, tendency for the biological systems to undergo rapid changes. Homeostasis, ये आंसर है इसका। हाँ सी होना चाहिए। self-regulate and maintain stability. ठीक है। Then यहाँ पे consider the following statements with respect to the flora and fauna found in the Thar Desert ecosystem. So, hog and Sivan grass, typical shrubs found in the desert. The gazelle is the only species of the Indian antelope of which the females have horns. And Run of Kutch is a breeding site in the Indian subcontinent for the flamingos. Flamingos के लिए breeding sites, Run of Kutch. ये तो गलत होना चाहिए। हाँ वही तो। Hmm. Gazelle is the only species of the Indian antelope which the females have horns. हो सकता है। Hog and savan grass are typical shrubs. Go with only two. One ओनली and two वन में ठीक है। जाऊंगा प्रवेश। मैं ऑल 3 लगा। ठीक, आंसर ऑल 3। पता था ये लास्ट वाला, रन ऑफ तो कच्छ। ठीक। हम्म। नहीं, इसमें जनरल बात है कि रन ऑफ कच्छ में ब्रीडिंग साइट होती है, तो हो भी सकते हैं। ऐसा क्या कारण है कि नहीं होगी। और दूसरे का पता था कि गैदल जो है उसी के एंटीलोप होते हैं फीमेल में, मेल के नहीं होते। ठीक है। Which of the following statements best describes the term net community production in an ecosystem? It is the rate of production of organic matter not used by the heterotrophs. It is the amount of biomass accumulated by plants per unit area in a given period. It is the rate of formation of the new organic matter by heterotrophs, and it refers to the total amount of solar energy fixed into organic matter by the primary producers. Net community production. The refers to total amount of solar energy fixed, rate of formation to new organic matter in a given period, rate of production. क्या हो सकता है इसमें? सी तो नहीं होगा, नेट नेट टर्म है तो अमाउंट ऑफ मैं डी लगाऊंगा। नहीं, सोलर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। आई थिंक कम्युनिटी आई गो प्रोडक्शन है विद ना, कम्युनिटी, तो कम्युनिटी प्रोडक्शन रेट। ए होना चाहिए। नहीं, इट इज प्लांट
Net सी, community न्यू production. ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय हेट्रोट्रॉफ। इसका आंसर ए है। Not used by heterotrophs. It is rate of production of organic matter not used by the heterotroph. ठीक Hmm. है. With reference to the water cycle, consider the following statements. Almost 95% of the total water on the earth is chemically bound to rocks and does not form any part of a cycle. The ये driving forces for the water cycle are solar radiation and gravity. And in the water cycle, evaporation is higher than precipitation over land. Third तो true है. Evaporation higher than precipitation over land. And driving forces for the water cycle are solar radiation and gravity. ये भी ट्रू है. पहला गलत होना चाहिए. मेरे से पहले होना चाहिए। केमिकल पहला होना चाहिए. पहला गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ गलत होना चाहिए. प्रवेश। 2 3 सही है। आंसर बी है इसका, लेकिन इसका पहला सही है। Returns back as a water vapor resulting from direct evaporation, evapotranspiration। फिर उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है जो 84% ऑफ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द थ्रू ओशन बाय इवेपोरेशन, फिर प्रेसिपिटेशन इन ओशन इज लेस देन इवेपोरेशन। हाँ, तो मतलब हाँ तो कि तीसरा ठीक है, मतलब दूसरा गलत है. ऑन द लैंड इवेपोरेशन 16% है, प्रेसिपिटेशन 23%। कम है, इवेपोरेशन लेस देन प्रेसिपिटेशन। तीसरा गलत है लैंड। नेशनल पार्क्स इन द स्टेट्स. माधव नेशनल पार्क छत्तीसगढ़. कून नेशनल पार्क ठीक है एमपी. संजय गांधी महाराष्ट्र. कांगेर वैली उड़ीसा. आई थिंक ये तो गलत है. कांगेर वैली ये हिली स्टेट में होगा, हिमाचल प्रदेश हो हिमाचल है। सकता. हाँ, संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र ही है. ओनली 2 ओवर्स। हाँ, संजय गांधी नेशनल पार्क पहला गलत है। माधव नेशनल हाँ ओनली पार्क। टू. माधव माधव मध्य प्रदेश है ना। एमपी है. हाँ, हाँ मध्य एमपी प्रदेश, होना चाहिए. कुनो मध्य प्रदेश, संजय महाराष्ट्र, और कांगेर वैली ये कांगेर रिवर के समय छत्तीसगढ़ है। कांगेर वैली छत्तीसगढ़. हम्म। ठीक है. वो भी तो है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटोकॉल्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी. Nagoya Protocol aims to ensure the safe handling, transport, and use of living modified organisms. Cartagena Protocol aims to share the benefits arising from the utilization of genetic resources in a उल्टा दिया हुआ fair है। and stable पहले way. कार्टेजेना आया था, जो बात हो रहा था कि मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म को ट्रांसपोर्ट करना है, उसमें एक रेगुलेशन होना चाहिए। उसके बाद फिर नगोया आया था 2010 के अराउंड, उसमें बोला गया था इक्विटी एंड बेनिफिट शेयरिंग, मतलब फेयर एंड इक्विटेबल वे में शेयरिंग होना चाहिए जेनेटिक्स। उल्टा है डी। उल्टा है. ठीक है. जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसका है वियना कन्वेंशन के अंदर में, वैसे ये दोनों प्रोटोकॉल बी सीबीडी के अंदर में। ठीक है. Biota of oceans. Biota of the pelagic region is less rich in species compared to the littoral zone, and dinoflagellates and the kelp forest are part of the biota of the neritic zone. तो बहुत स्पेसिफिक पूछा हुआ है. Biota of the pelagic region is less rich. पेलेजिक मतलब नीचे होता है, लिटोरल मतलब ऊपर, मतलब तट के आसपास है लिटोरल। तो गलत है फिर. लेस रिच बायोटा नहीं करेंगे। हाँ, हाँ ज्यादा रिच होगा. डेनोफ्लेजेट एंड केल फॉर ए पार्ट ऑफ द बायोटा ऑफ नेरेटिक जोन। नेरेटिक मतलब नेरिटिक जोन कहाँ पे होता है? नीचे होना चाहिए, गलत है, केल फॉर ऊपर होना चाहिए। पता नहीं क्या है। मैं इसमें ओनली 2 लगाऊंगा। इसका आंसर सी है। बेंथिक जोन दोनों. मतलब दो फ्लोर होता है। बेंथिक मतलब फ्लोर, हम्म. और पेलेजिक होता है जहां पर 3 जोन होता है उसके अंदर में। नेरेटिक जोन जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और डीप ओपन सी होता है ओशियनिक जोन। दो है पेलेजिक जोन के अंदर में। तो लिटोरल जोन तो मतलब मतलब. जहाँ पर हम्म. सैलिनिटी लाइट वाटर सब जगह रहते हैं। नेरेटिक जोन में 75% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द ओशन नेरेटिक जोन है एक तरह से, क्योंकि डीप सी भी उसके पार्ट है,
और तो उसमें ऑब्वियस बातें रहेंगे, प्लैंटन भी रहेंगे, डायटम भी रहेंगे, डाइनोफ्लेजेलेटर भी रहेंगे, टेल फॉरेस्ट भी रहेंगे। ठीक है। Traffic, though it is an organization that was established 1976 by WWF and IUCN, specializes in providing information analytics on illegal trade networks and new trends in trafficking. True. It has launched Project Spotlight to monitor the illegal trade in freight using the sniffer dog detection. Traffic. हो सकता है। I think हो सकता है। टू सी, थ्री तो हो सकता है इसके ऑल थ्री बारे में वन, शॉर्ट डिटेल। ये सही है, WWF IUCN। हम्म, तीनों ठीक है। हम्म। So यहाँ पे National Biodiversity Authority is a statutory body formed under the Biological Diversity Act 2002 to regulate use of India's biological resources. It would be required to obtain the approval of NBA before ट्रू seeking any IPR based on biological material obtained from India, and human genetic material is excluded ट्रू। from the definition of biological resources under this act. हेल्थ Human का genetic material हाँ MOST excluded साइंस में होगा बाकी सब में National बायोडाइवर्सिटी Biodiversity रोल्स, Authority। सी होना चाहिए। तीनों ठीक है। हम्म। हाँ, सी। This forest type is characterized by its evergreen, drought-resistant, woody coniferous trees like spruce, fir, and pine, which bear naked seeds in cones. The animals found in this forest include red squirrel, deer, goat, mule, moose, and carnivores like timber wolves and lynxes. The soils are acidic and poor in nutrients. Which type of forest? Tropical rainforest, नहीं है temperate भाई, deciduous, tundra, टुंड्रा भी नहीं होने boreal. I वाला, think टेम्परेट डेसिडुअस हो सकता deciduous. हम्म है। मैं प्रवेश, बोरियल लगाऊं। बोरियल। पता है तुमको बोरियर मतलब एग्जैक्टली? ओल्डर रीजन में ही लिखा हुआ ना, एसिडिक और पुअर, मतलब मैं भी ऐसे अभी पूरा 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन बोरियल लगाऊंगा। ठीक है, आंसर बोरियर है इसका। यहाँ पे लिखा हुआ ना, Largest शोइंग forest in the world, acts as the lungs of the planet, producing much of the air we breathe, influencing the world climate. बोरियल फॉरेस्ट, हम्म टाइगा, ठीक नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ यूरेशिया, आर्टिक टुंड्रा के जस्ट नीचे होता है बोरियल फॉरेस्ट। एसिडिक होता है, वुडी होता है, कॉनिफेरस, जो मूवी में देखते हैं ना, लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, हाँ क्रूज हम्म फाइन, फर पाइन, वही हुआ बोरियल फॉरेस्ट हो गया पूरा। ठीक है। So, which of the following best describes ecological efficiency in an ecosystem? The energy saved by the primary producers, which is otherwise lost as heat during photosynthesis. The higher natality rate of the species and lower rate of extinction within the ecosystem. ये तो गलत है. Then percentage of ठीक energy transfer from one trophic level to another in है, an ecosystem. हाँ, ecological efficiency है तो ये होगा. Higher proportion लॉजिकल of नहीं, primary producers compared to that. नहीं, C है. सी है इसका। How many of the following authorities are established under the मतलब ये Wildlife Protection Act जू 1972? अथॉरिटी, WCCB, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, फोर नहीं होगा, Wildlife Institute of India. ये नहीं होना चाहिए। मैं भी सी, 2 और 3 लगाऊंगा खाली। हाँ वन भी है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ तो होगा। वन टू थ्री वन टू टू। वो वन टू थ्री अच्छा हाँ ठीक है, 1 2। हाँ, सी। So, which of the following best describes black mimosa? Himalayan herb, organism endemic to Western Ghats, venomous species of snake, invasive species that invades wetlands. Black mimosa. हम्म, मैं सी मौसा लगाऊंगा, स्नेक। हाँ मेरे को भी स्नेक लग रहा है। मुझे भी स्नेक ही लग Black. रहा है, पता नहीं। डी है इसका आंसर। 101 Invasive स्पीसीज है, इन्वेजिव स्पीसीज। ब्लैक ममोसा क्या वीड है, है मतलब ये वीड बर्ड है, वीड, है प्लांट है? प्रॉब्लमेटिक वीड। ठीक है। सेंचुरीज इन द स्टेट कार्लापट वाइल्ड सेंचुरी उड़ीसा, नागी नाक्ती बर्ड सेंचुरी छत्तीसगढ़, देहिंग पटकाई ये तो मेघालय। थर्ड में होगा। देहिंग पटकाई मेघालय तो नहीं है। हाँ, मेघालय नहीं, असम में होगा। हाँ दूसरा स्टेट है। कार्ला जो पट नागी होगा, कार्ला पट ये उड़ीसा ऐसा ही है, नागा नागी नहीं पता। ये दूसरा गलत होना चाहिए। नागी नाकटी। देखते हैं, बी मारेंगे इसमें। हम्म मैं ओनली वन लगाऊंगी। आंसर है ए है इसका आंसर, ओनली वन।
दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरा बिहार में नागी नकटी वाइल्ड बर्ड सेंचुरी। और देहिंग पटकाई असम ही है। असम। असम। और कर्लापट उड़ीसा। Central Asian Flyway. It is one of the 5 flyways identified by the BirdLife International for the migration of birds. It is the shortest flyway in the world. गलत है, shortest नहीं होगा, longest होगा, Central Asian Flyway. And then bar-headed goose, Answer indicus, the world's highest altitude migrant, follows this route. Might be true. बी इसका आंसर। तीसरा ठीक होना चाहिए, दूसरा गलत होगा। बी। एंड पहला करेक्ट। हम्म। हम्म। बी। दूसरा ही गलत है। शॉर्टेस्ट फ्लाईवे इन द वर्ल्ड सेंट्रल। नहीं, ये सही अच्छा है। शॉर्ट। स्टेटमेंट 2 इज से करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज हम्म। 8 फ्लाईवे है, ठीक है। अच्छा 5 नहीं, ओके। 8 फ्लाईवे। ठीक है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट है। हाँ, शॉर्टेस्ट। With reference to India's biodiversity, Tamil lacewing tree nymph, Andaman crow, and great windmill swallowtail are birds ही होगा। क्रो है तो बर्ड्स ही है। बटरफ्लाइज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। अंडमान क्रो बर्ड्स, मैं तो बर्ड्स लगाऊंगी। बटरफ्लाई होगा, क्योंकि नाम में अंडमान क्रो, ट्री निम्फ, ट्री निम्फ, ग्रेट स्वैलो टेल, बटरफ्लाई होगा। बटरफ्लाई। हम्म। बटरफ्लाई है। हम्म। ठीक है। Following characteristics. So, in order for the biomagnification to occur, a pollutant must possess how many of the above characteristics? For biomagnification, शॉर्ट short लाइफ life, नहीं, लॉन्ग लाइफ नहीं, होना short चाहिए। life, long होगा। High solubility in water, नहीं। हाँ, true. नहीं, Low हाई mobility सोल्यूटिव गलत नहीं होगा। होगा, क्योंकि अगर हाई High सोल्यूटिव वाटर में solubility होगा water तो होगा। आपका अगर बॉडी में गया है तो वाटर सॉल्युबल करके किडनी से निकल जाएगा। वाटर सॉल्युबिलिटी नहीं होता है तभी तो फिर वो नहीं फैट में होगा, स्टोर होता है। मैग्नीफाई होगा, ठीक हाँ। है। लो हाई नहीं, हाई मोबिलिटी मोबिलिटी होना होगा। चाहिए। बायोलॉजी एक्टिव होना चाहिए, ओवरऑल। हाँ, बायोलॉजिकली तो इनएक्टिव ही होना चाहिए ना। बायोलॉजिकली एक्टिव हो गया तो डिकम्पोज हो जाएगा। तो बायोलॉजिकली इनएक्टिव ट्रू। तो ये ठीक है। बायोलॉजिकली पहला गलत इनएक्टिव, है। बायोलॉजी एक्टिव होगा। हाँ, बायो मैनिफिकेशन कर रहे हैं ना आप। अ, नहीं, लेकिन एक्टिव हो गया तो फिर डिकम्पोज, और आई थिंक वो ही हो जाएगा। बायोलॉजिकली एक्टिव हो गया तो फिर मैग्निफिकेशन कैसे होगी? मेरे हिसाब से फोर्थ ठीक होना चाहिए। ओनली वन लगाऊंगा मैं। इसका आंसर है डी, नन। कोई भी नहीं है। एक्टिव भी है, सॉल्युबल इन फैट है, मोबाइल है, लॉन्ग लिव्ड है। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है एज वी मूव फ्रॉम द लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल, तभी वो डेंजरस कहलाता है, इसलिए एक्टिव है। एक्टिव इनएक्टिव होता तो डेंजरस नहीं कहलाता। बायो मैनिफिकेशन। एक बार फिर से रिपीट करोगे? और बायोलॉजिकली इनएक्टिव के बारे में क्या जब बोला आपने? डेंजरस है, क्या डेंजरस है तभी तो उसको बोलते हैं कि पॉइजनस है, वो नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर में। हाँ। रिएक्शन कर सकता है ना, अगर डेंजरस नहीं होता, इनएक्टिव कंपाउंड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा अगर बोलना ही ठीक है, है, समझ गई गोल्ड को मैं। आप गोल्ड फॉइल खाते हो मिठाई में, हम्म। तो डेंजरस नहीं है। लेकिन ऐसी वही चीज़ कॉपर तो ऐसे हाँ नहीं खा सकते, या फिर बाकी सब तो नहीं, रिएक्टिव होता है, इनर्ट होता है गोल्ड, सिल्वर। तो सिल्वर जब ठीक लगता है। है तो खा सकते हो उसको, तो वैसे ही ये भी होगा हम्म। कि हाँ, समझ गई। दूसरे पर्सपेक्टिव से मैं हम्म। अलग उससे इंटरप्रेट कर रही थी इसको। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन इन सीक्वेंस। सो करेक्ट कोड क्या है इसका? पहले 1 या 4 में से कोई आएगा करेक्ट। प्रोसेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन, कैटाबॉलिज्म या लीशिंग? आई थिंक लीशिंग होगा पहले, हम्म। उसके बाद कैटाबॉलिज्म। फिर ह्यूमिफिकेशन और तो मिनरलाइजेशन, वन मिनरल को ज़्यादा ज़्यादा मिनरल। तोड़ देंगे तो मिनरल बन जाएगा। तो हम्म। प्रवेश। 4 1 2 3। हाँ, 4 1 2 3। सी, 4 1 2 3। ठीक है। With reference to the High Seas Treaty, so it is a legally binding international agreement on the conservation of marine biological diversity. True.
It covers the high seas, exclusive economic zones, national waters of the countries. हाई नहीं, national waters तो नहीं होना चाहिए, और इकोनॉमिक जोन्स भी नहीं होना चाहिए हाई सीज में, तो दूसरा गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से. इट इज द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रीटी बाय द यूएन टू गवर्न द हाई सीज. दिस इज ट्रू. मैं दूसरा 1 लगाऊंगी. लीगली बाइंडिंग है 1. इस तरह से, और हाई सीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अकेले ट्रीटी होगा. हाई सी, फिशिंग, Okay. माइनिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए. So, with reference to the processes under nitrogen cycle, consider the following pairs: nitrification, conversion of nitrates or nitrites into gaseous nitrogen, nitrification; नहीं, assimilation, conversion of the gaseous nitrogen into ammonia; ammonification, ये आई थिंक दूसरा और तीसरा उल्टा होना चाहिए, तीसरे में होना चाहिए ना, कन्वर्जन ऑफ गैसियस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, तो वो अमोनिफिकेशन होता है. तो ये बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू इनऑर्गेनिक अमोनिया. 1 और 4 जो है डी. ना, वो एक एक ऑपोजिट एक दूसरे का. 1 और 4 हाँ ये भी उल्टा है, हाँ सही बोल रहे हो. डी नाइट्रिफिकेशन इज कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रस, नहीं हाँ उल्टा है. डी नाइट्रिफिकेशन थर्ड सही है. इनटू गैसियस फॉर्म होता है. अब सेकंड में आते थर्ड हैं थर्ड से, क्योंकि चेंज हो रहा है अमोनिया में, लास्ट में अमोनिया बन रहा है तो अमोनिफिकेशन है. एसिमिलेशन, इनऑर्गेनिक. हाँ, इन एसिमिल कन्वर्शन ऑफ गैसेस नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, एसिमिलेशन हो सकता है. 2 और 3 हो मेरे सकता हिसाब है. से करेक्ट होगा. 1 और 4 उल्टा है. हाँ, ए है मैं तो इसका ओनली आंसर. फिर भी. 1 और 4 उल्टा है, 2 और 3 करेक्ट है. तो ठीक है. Recently, Union Minister for Commerce and Industry participated in the Investor Forum of the Partnership for the Global Infrastructure and Investment (PGII) initiative of G20. True. It is aimed to फॉल्स. fund the ये infrastructure G20 का projects नहीं in हुआ है. developing ये countries. ये डेवलप कंट्रीज के G20 का ऑल्टरनेटिव टू BRI था, PGII. तो ऑल्टरनेटिव G20 का भी नहीं बोलेगा, क्योंकि चाइना का अगेंस्ट नहीं जाएगा G20. तो G7 का था ये चीज, PGII की ऑल्टरनेटिव टू चाइना, BRI प्रोजेक्ट, PGII. फंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है. बी इसका आंसर. डेवलपिंग कंट्रीज लिखा है, ठीक है. हाँ, ऑल्टरनेटिव टू चाइना है ना BRI, इसलिए. ठीक है. हाँ तो इनिशिएटिव G7 ही है. हाँ. Okay, United Nations Commission on International Trade Law. Established in the aftermath of the dot-com bubble in the late 90s, members of the Commission are elected by the General Assembly of the UN for a term of 6 years, and it is involved with the state-to-state issues such as countervailing duties or the import quotas. Nations Commission on International Trade Law. State-to-state issues. I think यहाँ पे WTO होना चाहिए. डिस्प्यूट सेटलमेंट और उसके अंडर आना चाहिए ये, थर्ड वाले का. कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है ना, तो पहला वाला आई गलत डोंट है. थिंक पहला वाला, गलत. पहला वाला हाँ जो ये है, भी. इट विल बी बिफोर, जितना लेट नहीं हुआ था यूनिवर्सिटी, पहले से कमीशन इंटरनेशनल ट्रेड. ये रीजन भी नहीं हो सकता, ये तो तो अलग ही पहले नहीं चीज है. था. .com पर पे. लास्ट का नहीं पता. स्टेट लास्ट का मेरे से हिसाब से काउंटर वाले ड्यूटीज इंपोर्ट होता है तो ये उससे रिलेटेड होगा, WTO से रिलेटेड होगा. थर्ड भी गलत होगा. वही बोल रही हूँ. हाँ मतलब रेजोल्यूशन की बात हो रही है ना एक तरीके से, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट की. जैसे हाँ, ओनली 2. ओनली 2. ए है इसका आंसर, हाँ ओनली 2 है. वी कैन ठीक है. कंटिन्यू नेक्स्ट, नेक्स्ट वीडियो. हम्म. ओके. With reference to the Indian tigers, though it is both an umbrella species and keystone species. True होना चाहिए. Launched 50 years ago, Project Tiger provides central assistance to the states for in situ conservation of the tigers in designated tiger reserves. True. Then boundaries of the tiger reserves cannot be altered without the approval of the NBW, National Board for Wildlife. ठीक है, ये भी तीसरा भी हाँ. सारे ठीक होने चाहिए. ठीक है. Which of the following international agreement addresses issues related to the biopiracy and benefit sharing? Kyoto, Stockholm, Nagoya, Montreal. नागोया, वही अभी पढ़े ना ऊपर में. Biopiracy. हम्म. हाँ benefit sharing, ठीक है. बायोडाइवर्सिटी. Respect to the monotremes, highly specialized egg-laying predatory mammals containing the platypus and echidnas.
There are only 5 living species and all of them are found only in Australia and New Guinea. पता नहीं तो क्या है मोनोस्ट्रीम्स हो सकता है, पहला हो सकता है ओनली 5 लिविंग स्पीशीज, दूसरा तो डाउट है मेरे को, मैं दूसरा गलत लगाऊंगी, ओनली 1। ओनली सी है। दोनों है, ओनली 5 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी। हम्म Then photosynthetically active radiation constitutes more than 50% of the incident solar radiation. Plants capture less than 10% of the PR energy that sustains the entire world. Less than 10% हो सकता है, दूसरा true, constitutes more than 50% of the incident solar radiation. Photosynthetically active radiation. More than 50%, I don't think so. गलत हो गया पहला, दूसरा ही लगाऊंगी मैं तो बस। Only 2. है बी हो। हम्म 50% मोर नहीं होगा। हाँ 1 इज नॉट करेक्ट, बी है इसका। ठीक है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कस्टोडियन ऑफ द नेशनल जूलॉजिकल कलेक्शंस, ट्रू होना चाहिए। इट प्रिपेयर्स द रेड डेटा बुक फौना ऑफ इंडिया एंड डज क्रोमोसोमल मैपिंग एंड डीएनए। रेड डेटा बुक तो आयुसीएन करता है, ओनली 1 होगा। हम्म तो दोनों हो गए यहाँ पे। दोनों, हाँ दोनों इसका आंसर। रेड डेटा तो आयुसीएन नहीं करता है। इंडिया का बात हो रहा है मानसी इसमें, रेड डेटा बुक। आयुष्मान तो वर्ल्ड वाइड करता है, कहाँ? ये इंडिया का बात कर रहा है। नो ऑफ इंडिया। हाँ, तो ठीक इंडिया है। में कस्टोडियन वही है। दोनों आंसर है सी। हम्म How many of the above protected areas are a part of the Cold Desert Biosphere Reserve? Pin Valley, Kibber, and Keetham Bird Sanctuary. Cold Desert. इन वैली तो पक्का होगा, किब्बर भी होगा। कितना वैली तो पता है हो प्रवेश? सकता है, आई थिंक ये नहीं, मैं गुजरात में। 1 2 लगाऊंगा, कितना पता नहीं, तो 1 and 2 ओनली। वन टू बी। कित्तम वैली है सिक्किम में, पिन वैली, किब्बर वैली एचपी में। हमें चलते बी करेक्ट। ठीक है। Undemarcated protected forest cannot be used for non-forest purposes without clearance under which act? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। फॉरेस्ट से Forest con क्या है आंसर? फॉरेस्ट से रिलेटेड है तो यही होगा स्टार्टिंग में। Undemarcated protected forest है, रिजर्व तो फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन। आता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है तो ब्रिटिश पीरियड के समय आता है, 1927 एक्ट। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो अनडिमार्क जो फॉरेस्ट है वो होना चाहिए उसी में। देखते हैं। हम्म अनडिमार्क प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑरेंज फॉरेस्ट है, इट इज यूज फॉर नॉन कैनॉट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर 1980। ठीक है, ठीक है। 1980 सी इसका आंसर। How many of the above organisms are denitrifying bacteria? Denitrifying Nitrococcus, Thiobacillus, Pseudomonas, Paracoccus. Denitrifying bacteria कौन सा है? आई थिंक ये तो होगा Pseudomonas. Pseudo means opposite, तो हो सकता है नाइट्रोकोकस Thiobacillus. नाइट्रो बनाता है तो डीनाइट्रीफाइंग नहीं होगा। बाकी तीनों जो डीनाइट्रीफाइंग है, नाइट्रोजन को तोड़ता हाँ है, हो सकता है, हाँ नाइट्रोकोकस तो नाइट्रो बना रहा है वो, तो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है पहला वाला। बाकी तीनों हम्म नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। हाँ ठीक है, इसका आंसर सी है। यही नहीं है ना नाइट्रो हाँ। वाला? ठीक है, which of the following statements best describe the term speciation in ecology? Process of creating new species from existing ones. It is a taxonomic classification of organisms into species, movement of species from one habitat to another, evolutionary reversal of species to its ancestral form. Speciation, movement of species from one. I डी है, think डी।
The evolutionary reversal. ए है इसका आंसर। Creating new species from existing ones. ए। Reference to the economics of ecosystems and biodiversity. So it's a global initiative focused on making nature's values visible. It finds its institutional home at the United Nations Environment Programme in Geneva. Recently, Government of India launched TEEB India initiative at G20 summit. Not correct पूछा। तीसरा तो ठीक है मेरे हिसाब से। TEEB India G20 में किया होगा। Focused on making nature's values visible. Might be true. Find its institutional home at UNEP. पता नहीं फिर इसमें क्या। दूसरा गलत हो सकता है। मैं पहला करेक्ट पर है, इसमें सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। 2015 है। ठीक है। हाँ, ठीक है। 23 में तो नहीं हुआ था ना अभी हाल फिलहाल में G20 में टीब। United Nations General Assembly. In UNGA, हाँ, each of the member states of the United has equal सही vote. बात है। Assembly meets in regular sessions from September to December each year. हम्म, UNGA elects the non-permanent हम्म, members of the Security Council. हाँ, Credentials Committee is appointed by the UNGA at each true, session. Credentials Committee at each session. ठीक है हाँ। all four। हाँ सारे ठीक है। With reference to the biodiversity cold spots. They are the areas where the fitness of at least one of the two species is determined by interactions with the other. Cold spots are relatively empty and they have unstable environment. डेजर्ट टाइप, कोल्ड They are डेजर्ट better. और मतलब हाँ हो सकता है सही। They are better equipped डाइवर्सिटी to ट्रॉपिकल handle एरिया। diversity than tropical areas. तीसरा गलत होना चाहिए। Better equipped to handle diversification तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट तीसरा टाइप गलत। होना चाहिए, तो सी होगा इसका आंसर। Cold इसका spot। आंसर है सी। तीसरा एक्सट्रीम कैसे ठीक है? इन्वायरमेंट, दे आर बेटर इक्विप्ड टू हैंडल डाइवर्सिटी स्पीशीज दैन ट्रॉपिकल एरियाज, क्योंकि एक तरह से एग्जिस्टिंग स्पीशीज होता ही नहीं है इसमें, इक्विप्ड टू हैंडल डाइवर्सिटी स्पीशीज। हम्म। मतलब कंपटीशन कम है इसीलिए। कंपटीशन कम है उसके हिसाब से देखा जा रहा है। पैराडॉक्स ऑफ डाइवर्सिटी इसको बोलते हैं कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट एट डेजर्ट माउंटेन कोल्ड स्पॉट equipped better to handle the diversity of species than tropical air region which are already crowded with existing species। वही है कि ठीक है। सो यहाँ पे powers of the National Tiger Conservation Authority is the primary authority which notifies tiger reserves in the tiger states of country. Approval is required for the alteration of the boundary tiger reserves in India. It's approval. हाँ इस approval तो चाहिए आई थिंक। WPA है इसमें, नेशनल बोर्ड, उनकी टाइगर रिजर्व जो भी होता है नोटिफाई वो तो भी नहीं करेगा ये। नोटिफाई भी नहीं करेगा, और ये उसके बाद फिर बाकी WPA एक्ट करता है एक तरह से, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो तो खाली नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ उसी की चाहिए होती है और अप्रूवल। नीचे होता है NTCA, तो एक रेगुलेटरी बॉडी टाइप है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, ऐसे डी होना चाहिए। हम्म टाइगर जो नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस, स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करते हैं, एडवाइस देते हैं, एडवाइस ही कर सकते हैं, अप्रूव नहीं कर सकते। हम्म तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइज द एरिया एज टाइगर रिजर्व, ये नोटिफाई नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं नो अल्टरेशन, कुछ भी नहीं हो सकता अंडर द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो WPA एक्ट 1972 के अंदर। खाली वो ही है मतलब ठीक है। एलेलोपैथी biological interaction where the association is beneficial for both the partners but is not essential for survival of each other. It is a biological phenomena by which an organism produces biochemicals that influence the survival of other organisms. It is the ability of ecological systems to maintain stable system properties despite perturbations, and it is a form of programmed cell क्या है? Cell death that occurs in multicellular organisms. पता नहीं Allelopathy. क्या हुआ प्रवेश। ए लगाऊंगा मैं इसको। ए, बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टनर्स, मतलब प्लस प्लस दोनों के लिए, नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ईच अदर। हाँ तो ये सर्वाइवल के एलोपैथी लिए नहीं है, ये ये नहीं होगा, ए नहीं होगा। BC और बी में से होना चाहिए। इसका आंसर है
बी, प्रोड्यूसेस केमिकल कंपाउंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ नियरबाई वुड बी कॉम्पिटिटर। फॉर एग्जाम्पल, कि ऐसा ट्री जो सीक्रेट करता है जूग्लॉन, ब्लैक वॉलनट ट्री, फ्रॉम इट्स रूट, और वो आसपास के जो वीड होते हैं प्लांट स्पीशीज को मार देते हैं, ताकि कंपटीशन हो ही नहीं न्यूट्रिशन का, जिसको एलोपैथी। ठीक है। और क्या ए को आंसर क्या है? बोलते हैं? ए को इसको क्या बोलते हैं बोलते हैं? अमेंसलिज्म। ठीक है। नहीं, बी आंसर है इसका। बी। बी 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 बॉम्बे। सो इको कंसिडर लोकेशन। द फॉलोइंग है। हाँ, ये तो तीनों होना चाहिए। हाउ वेव मेनी द सेटर। अबव मेंशन आर नोट इज echolocation for navigation? हाँ, तो all three. Wetlands occupy 18% of the country's area, of which 70% are under paddy cultivation. 70% तो नहीं होगा. State of Tamil Nadu has the most Ramsar sites in India, followed by Assam. वेटलैंड ये भी ऑक्यूपाई गलत एटीन है. पॉइंट फोर परसेंट ऑफ कंट्रीज एरिया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। वेट। हम्म दूसरा भी गलत होगा. तमिलनाडु में हाँ, हाईएस्ट नहीं है तमिलनाडु बट. नहीं है, हाँ। डी क्यों करूंगा, प्रवेश। हाँ, डी। वाराणसी। डी लगाऊंगी मैं भी, दोनों गलत. आंसर है इसका पहला, ए है इसका आंसर। सेकंड नहीं है, तमिलनाडु सेकंड में, उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु हैज द मोस्ट रामसर साइट इन इंडिया। रामसर साइट इन इंडिया, फॉलोड बाय असम। असम नहीं है, फॉलोड बाय यूपी। इंडिया अच्छा. हैज 18 पॉइंट, वेटलैंड ऑक्यूपाई 18.4% ऑफ द कंट्रीज एरिया। हाँ, वेटलैंड है ना। 70% अंडर पैडी. और ये तो अच्छा डेट है. हम्म। So, Gentiana kuro was a plant mentioned in news recently. Endemic to Western Ghats, classified critically endangered, known to help treat digestive disorders and urinary infection. एंडेमिक हो सकता है वेस्टर्न घाट्स में. हाँ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हो नहीं होगा, सकते हैं. ज्यादा ही है तीनों ने. क्रिटिकल। मैं बी मांग रहा हूँ, ओनली टू। प्रवेश। मैं तीनों लगाऊंगी, तीनों. मेरे हिसाब से 1 और 3 सही है, सेकंड गलत है। हम्म। आंसर है इसका, वन गलत है। इसका वेस्टर्न हिमालय है, सेकंड वाला सही है, और थर्ड वाला भी सही, तो उसका भी बी। वेस्टर्न हिमालयस. हम्म। हम्म Okay, Biodiversity Act of 2002, there is no need for prior approval of the state biodiversity boards for obtaining biological resources for research in India for the Indian researchers. No prior approval. ये तो गलत होगा, I think. The People's Biodiversity Register, which is a legal document that contains details of the biological resources, is prepared by the National Biodiversity Authority. People's Biodiversity, only two लोग. नहीं, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बीएमसी करता है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ये करते हैं। सेकंड वाला गलत है, नेशनल वाले नहीं करते, नेशनल। पहला वाला नो नाइदर, नो नीड फॉर प्रायर अप्रूवल। रिसर्च करने के लिए अप्रूवल तो चाहिए होगा. ये मेरे हिसाब से गलत हो, हाँ, गलत बी होना होगा चाहिए मेरे पहला हिसाब दोनों. से आंसर। आंसर है ए है इसका आंसर। अच्छा. नो प्रायर बायोडाइवर्सिटी एक्ट अप्रूवल. 2002 के अंदर में दो तीन कमेटी होते हैं। एक तो लोकल लेवल में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, वो काम करते हैं। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, लोग को लेते हैं, आसपास में सिविल सोसाइटी को लेते हैं, और देखते हैं कितने रिसोर्सेज है लोकल लेवल पर। कौन करता है काम? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो वो आते हैं अच्छा. बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एट लोकल लेवल, सेल गवर्नमेंट होता है। ठीक है. फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होता है, फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। हम्म जैसे डालसा सालसा ओके. है ना, वैसे इसमें भी वैसी है। हाँ. फिर इंडियन रिसर्चर नाइदर रिक्वायर प्रायर अप्रूवल नॉर नीड प्रायर इंफॉर्मेशन इंटीमेशन टू एसबीबी, इस वन इज करेक्ट। ठीक है। हम्म इसमें से how many of the above represent the structural components of habitat in an ecosystem? Space, food, water, तीनों ही है. Structural, space, हाँ, food, तीनों ही water. How many of the above mentioned countries are members of APEC, Asia Pacific Economic Cooperation?
सभी होंगे। हाँ सारी होनी चाहिए इसमें भी। एपेक में सभी होंगे, एशिया पैसिफिक है। हाँ देखो। ऑल 5, डी, 21 ठीक कंट्री, है, ये सभी फिर से आ एशिया। गया homeostasis वाला। Which of the following statement best describes positive feedback system? Increase in population at one level leads to further increase in its population. ये पॉजिटिव फीडबैक होगा। Increase in population in one level leads to decrease, तो नहीं होगा। Decrease in population leads to increase, positive feedback. Sudden increase in population leads to shortage, होगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा। हम्म, हाँ ये है इसका आंसर, 98। The animals in which of the following ecosystems generally have the above characteristics? Fast runners, nocturnal, usually have long legs. Desert होगा नहीं, fast runners, desert नहीं होगा, grassland होगा। नॉक्टर्नल, लॉन्ग लेग, ग्रासलैंड होना चाहिए। मैं तो इसको सोच रहा हूँ हम्म, पता है, देखना होगा। डेजर्ट, ग्रासलैंड ही होगा फास्ट रनर तो। डेजर्ट। फास्ट रनर होते हैं, प्रेडेटरी नॉक्टर्नल होता है, एनिमल बर्ड में हैव अ लॉन्ग लेग। डेजर्ट आंसर। हम्म, ठीक है, स्टेटमेंट वन, नो टू स्पीशीज इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम नीश। If two species occupy the same niche, they will compete with one another until सही one बात is displaced. दोनों है। ठीक है, रीजन ए। हम्म, हाँ, कंप्लीट। Okay. ठीक। Thank you everyone for joining us on Ansarkari and stay tuned for further videos.